हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली क्लास 9th में हमने जो हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 थी दैट इज़ रिलेटेड टू द हीरोन्स फॉर्मूला, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी। उस एक्सरसाइज में बेसिकली देयर वाज 6 प्रॉब्लम एंड ऑल 6 प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड। Today we are going to deal with the next exercise, that is exercise 12.2, जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। So let's start up। आप अपनी पेन और कॉपी के साथ में बैठिए। First of all you should look after the question, you should pause the video and try it on your own. If you are not able to solve those problems then you should look after the solution। या फिर आप लोग अपने बुक से पहले 12.2 एक्सरसाइज को ट्राई आउट कर लीजिए, उसके बाद जो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं इस वीडियो में देन यू शुड लुक आफ्टर दोज सॉल्यूशंस। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ट्राई ईच एंड एवरी प्रॉब्लम गिवन इन एक्सरसाइज 12.2 ऑन योर ओन। दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। तो आइए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 12.2। हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, जिसमें हमारे पास एंगल C इज़ गिवन टू बी 90 डिग्रीज़। हमारे पास एंगल C जो है दैट इज़ गिवन टू बी 90 डिग्रीज़। वहीं पे जो हमारे पास डिफरेंट साइड्स हैं उसकी लेंथ हमको दी हुई है। द साइड AB इज़ 9 मीटर, BC इज़ 12 मीटर, CD is 5 meter and DA या AD that is given to be 8 meter. In this exercise we need not concerned with just applying Heron's formula. We can apply any formula to find out the area of the triangle and then we can find out the area of the geometrical figure that has been provided in that particular question. तो कोई ऐसा compulsion नहीं है कि you have to apply just the Heron's formula. In the first exercise that was 12.1, the Heron's formula was compulsory because you were in the learning stage. आप लोग सीख रहे थे Heron's formula, how to apply that formula. That's why all the problems were solved by using Heron's formula. In this exercise you can apply any formula. We have basically two formulas. The first one is half base into height and the other one was Heron's formula, which we have already introduced in the part 1 introduction of the Heron's formula. So if you have not attended those lectures then you can attend the lecture. I will provide the description link in the description box. तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है। Let us call this triangle as 1 and this triangle as second triangle। तो देखिए अभी सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें हमारे पास देखिए दो साइड्स गिवन है। हमको तीसरा साइड्स पता होगा तभी हम हीरोन्स फार्मूला को इस फिगर में अप्लाई कर पाएंगे, फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट इन द सेकेंड ट्रायंगल एज दिस इज 90 डिग्री दैट मीन्स CD इज फॉर सेकेंड ट्रायंगल we have CD is perpendicular to BC। तो हमारे पास जो है CD ऑलरेडी गिवन है 5 और BC हमको मालूम है कि that is 12। तो we can applying Pythagoras theorem। We can apply Pythagoras theorem and we can find out BD। जब BD निकल जाएगा so we can use the Heron's formula in triangle 1 as well as in triangle 2 to find out the area of the two triangles, and when we are going to add up the area of the first triangle with the area of second triangle then we are going to get the area of the quadrilateral which has been asked in the given problem। तो अभी हम लोग देखते हैं Pythagoras theorem, यानी कि हमारे पास BD square is going to be equals to BC square plus CD square।
as we know h square is equals to p square plus b square is the Pythagoras theorem. तो BD हमारे पास क्या आ जाएगा, BD is under root of 12 square plus 5 square and that is going to be under root of 169 and that is going to be 13. So this is 13 meter. Now we have all the sides both in the triangle 1 and triangle 2. तो हम लोग लगा सकते हैं Heron's formula, but in second triangle as CD is perpendicular to BC we can apply another formula. We can use triangle area of second triangle is going to be equals to half base is 12 into height is 5, so that is going to give me 30 meter square. You can also use the Heron's formula to calculate the area of the second triangle. First triangle जो है हमारे पास we don't have any option to find the area, we must have to apply the Heron's formula. So you can note down these points and then we will move to find the area of triangle 1. तो अभी देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल is going to be under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. You can calculate s is going to be half of the perimeter and that is 9 plus 8 plus 13. So by this way you can calculate the value of s और इस तरह से हम लोग s minus b, s minus a, s minus b, s minus c भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. ये जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 30, दैट इज गोइंग टू बी 15 मीटर. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 15 इंटू s minus 15 minus 9, it is going to be 6 into 15 minus 8 is going to be equals to 7 into 15 minus 13 that is going to be 2. तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अभी देखते हैं हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी. यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यू कैन कैलकुलेट दिस इज वैल्यू इज गोइंग टू बी 6 अंडर रूट 35 और जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 35.5 मीटर स्क्वायर. यू कैन चेक आउट द कैलकुलेशन. और अभी जब हमको एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सम ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल. तो सम ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज 30 मीटर स्क्वायर. वहीं पे first triangle is 35.5 meter square, so area of the quadrilateral will be equals to 65.5 meter square. So this is the solution of problem number 1. You can pause the video and note it down, then we will move to the second problem of the exercise. In second problem again we have a quadrilateral ABCD जिसका साइड हमको दिया हुआ है. AB is 3 meter, BC is 4 meter, CD is 4 meter, AD is 5 meter और AC is given to be 5 meters. Again we have to calculate the area of ABCD. तो again हम लोग मान लेते this is first triangle, this is second triangle. दोनों triangles का area find out कर लें, दोनों को add कर दें, then we are going to get the area of the complete quadrilateral. तो again सबसे पहले हम लोग second से start करते हैं. In triangle A बी सी हमारे पास क्या है, देखिए ए बी इज इक्वल्स टू 3 मीटर, बी सी इज 4 मीटर और ए सी इज 5 मीटर.
आप लोग को अगर पाइथागोरस थ्योरम याद है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी, देयरफॉर आई कैन राइट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. जब परपेंडिकुलर आ गया, यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट द एरिया ऑफ triangle ABC is half base is 3 into height is 4, तो ये हो जाएगा and that is going to be 6 मीटर स्क्वायर. अब आइए सेकंड देखते हैं हम लोग. सेकंड ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो यू कैन सॉल्व इट in two ways. First of all, you can calculate the perpendicular, जो है परपेंडिकुलर है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द साइड बाइसेक्टर एंड दिस साइड इज गोइंग टू बी 2 मीटर एंड दिस साइड इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2 मीटर. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, हमारे पास सी डी था 4 मीटर. अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इट ज्वाइन एट पॉइंट ई बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये जो ई पॉइंट पे ए डी ए ई जो है दैट इज परपेंडिकुलर. अगर आप वो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर आ चुका है. बेस यू नो इट इज़ 4 मीटर. यू कैन कैलकुलेट द एरिया बाय यूज ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट. फर्स्ट मेथड ये है. सेकंड मेथड you have again the Heron's formula. You can apply the Heron's formula and calculate the area. तो हम दोनों तरह से देख सकते हैं. जो फर्स्ट मेथड है पहले देखते हैं, द परपेंडिकुलर. तो ए ई इज स्क्वायर इज गोइंग टू बी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ए सी स्क्वायर माइनस द बेस इज ई सी स्क्वायर. तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ए सी इज 25 माइनस द बेस इज EC and that is going to be 4, so that is going to be under root of 21. तो this is AE. तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाफ बेस इज 4 इंटू हाइट अंडर रूट 21. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 अंडर रूट ऑफ 21 मीटर स्क्वायर. अगेन the second method we can use Heron's formula, under root of s minus a, s minus b into s minus c. S is going to be half of 14, 5 plus 5 plus 4. So 5 plus 5 is 10, 10 plus 4 is 14, that is going to be 7 meter. So again under root of 7 into 7 minus 5 that is going to be 2 into 7 minus 5 that is going to be 2 again, और उसके बाद 7 minus 4 that is going to be 3. So you can check out that is going to be under root of 221 meter square. So by both ways we have calculated and got the area to be same as that of 2 under root of 21. Again we have the area of first triangle, the area of second triangle. You can add up and get that area of the triangle. So area of quadrilateral is going to be 2 3 plus under root 21 meter square. Now you can solve for under root 21. If you are able to find out the under root 21, then you can add up and multiply. आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा. So I am leaving out the calculation of under root 21 for you people. You have to solve it out. तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा. You can pause the video and note down the solutions. Then we will move to the third problem of this exercise. In problem number 3 we have given a area जिसका हम लोग को बेसिकली जो कंप्लीट एरिया है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमने
इस कंप्लीट एरिया को डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यू कैन नोटिफाई जो फर्स्ट एरिया है दैट इज़ डिनोटेड बाय 1, सेकेंड एरिया इज डिनोटेड बाय 2, ये है हमारे पास थर्ड एरिया और दिस इज फोर्थ एरिया। वी विल कैलकुलेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस गिवन फिगर, और जब हम लोग उसको ऐड कर देंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर। तो इस तरह से आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन पार्ट 1 जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है उसमें देखिए दो साइड्स जो हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स के हैं। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, और एक साइड जो है दैट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो लेट अस अप्लाई द हेरॉन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हमारे पास S क्या आ जाएगा? S इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 5.5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास S आ चुका है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5.5 इंटू, देखिए जब 5.5 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0.5। अगेन जब हम लोग 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 0.5, और लास्ट में जो मेरे पास बचेगा जब 5.5 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 4.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.187। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से या फिर मैं इसको ऐसे राउंड ऑफ अगर करूँगा मैं तो आई कैन राइट इट आउट एज 6.19। हम जानते हैं कि जो हमारे पास 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 625। तो अगर मैं 2.5 का स्क्वायर की बात करूं तो दैट इज़ गोइंग टू बी 6.25। और देखिए 6.25 और 6.19 जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सो द वैल्यू इज़ ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 2.5, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली टू 6.25 मान रहा हूँ। So I can write approximately it is equals to 2.5 centimeter square. So this is the area of the first part. Now we should move to the second part. तो पार्ट सेकंड की जब मैं बात करता हूँ, पार्ट सेकंड बहुत ही ईजी है क्योंकि दैट इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मुझे कुछ नहीं करना है। एरिया इज गोइंग टू बी 1, देखिए ये जो हमारे पास साइड है दैट इज़ 1 और दिस साइड इज 6.5 सेंटीमीटर्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 6.5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने जो एरिया सेकंड है उसका एरिया निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं तो पार्ट 4 जो है अगेन वो ट्रायंगल है जिसमें देखिए ये 90 डिग्रीज़ है। ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड जो है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर और उसके परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है दिस इज़ 90 डिग्रीज़ और यहाँ पे दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो अगेन यू कैन यूज़ द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस 1.5 into height 6 and that is going to be 4.5 centimeter square. So now you can note down these parts, the area of these parts, then we will calculate the area of the third part and then we are going to add up the area of each and every part और उसके बाद हमको जो टोटल एरिया है वो मिल जाएगा। In part third
अगेन हमारे पास देखिए यहाँ पे मैंने एक जो फिगर ड्रॉ किया है ऑफ पार्ट थर्ड, इसमें बेसिकली हमारे पास एक साइड है ऑफ 1 सेंटीमीटर, द अदर साइड इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, और जो हमारा बेस है दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ ट्रेपेजियम। और जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोग जानते होंगे, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग के पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम लोग निकाल सकते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर दैट इज गोइंग टू गिव मी 3 सेंटीमीटर। बट हमारे पास एक जो टर्म है हाइट, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइट? देखिए, टू कैलकुलेट द हाइट हमने क्या किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है। जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू मीट अप एट द मिड पॉइंट। सो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिस लेंथ इज अगेन 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ऑल 3 साइड्स आर 1 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम लोग जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है उसकी जो हाइट होगी वी कैन कैलकुलेट, और जो हमारे पास जो हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगी दैट इज गोइंग टू बी द सेम हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेपेजियम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए, हमारे पास ये जो है हाइपोटेन्यूज दैट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर। लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल सेपरेटली। दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट। तो h विल बी अंडर रूट ऑफ, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस द बेस स्क्वायर दैट इज 0.5 होल स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 माइनस 0.25 and that is going to be under root 0.75. देखिए, this is not a accurate square root, तो मैं इसकी approximate value ले रहा हूँ। You should take the approximate value। देखिए, हमारे पास 9 का स्क्वायर जो होता है that is going to be 81, तो I can write 0.9 square is equals to 0.81, 0.81 आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 0.75 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.81। ये इसी के पास है, सबसे नियरेस्ट है। अगर मैं बात करूँ 8 का स्क्वायर की, तो 0.8 का स्क्वायर जब लेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी 0.64। तो इस वजह से मैं 8.8 नहीं लिख रहा हूँ इसको, आई एम गोइंग टू राइट इट एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.9। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ चुकी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेपेजियम। तो इसमें निकाल लीजिए आप हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इंटू 0.9 सेंटीमीटर। तो आप दिस यू कैन कैलकुलेट हाफ इंटू 3 इंटू 0.9। तो ये जो एरिया आ जाएगा मेरे पास दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए सभी एरिया आ चुका है 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट का दैट वाज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड।
जो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आया था दैट वाज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ पार्ट का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नाउ वी हैव द एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट दैट इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द टोटल एरिया is equals to 2.5 centimeter square plus 6.5 centimeter square plus 4.5 centimeter square plus 1.4 centimeter square. So you can add up and you can calculate the total area of the given figure. अभी देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है. एक्चुअली वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया, फोर्थ एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास इस साइड का है. दिस ट्रायंगल एरिया विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आप लोग देखना ना भूलें कि यहाँ पे जो एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का एरिया हम लोग को ऐड करना है. नाउ दिस इज करेक्ट एंड यू कैन नोट डाउन द गिवन सॉल्यूशन. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसकी तरफ मूव करेंगे. द गिवन प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और एक पैरेललोग्राम है जिसका जो बेस है और जो एरिया है वो सेम है. हमको ये गिवन है डेटा में, डेटा क्वेश्चन में. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस जो है दैट इज ऑफ 28 सेंटीमीटर और वहीं पे जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका भी जो बेस है दैट इज 28 सेंटीमीटर. तो अभी जो है हमको वी हैव टू कैलकुलेट the height of parallelogram. तो शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को इस तरह से लिखते हैं, यू शुड राइट इट डाउन. तो अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. तो बेस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मुझे 28 दिया हुआ है. वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट. तो हाइट कहाँ से आएगी? वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज सेम. तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल. उसको हम लोग इस फॉर्मूले में इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे. बेस वी ऑलरेडी नो इट इज 28 सेंटीमीटर्स. तो वहाँ से मेरे को जो मेरी हाइट है ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम वो मुझे मिल जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एस. एस इज गोइंग टू बी अगेन हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर. सो दैट इज गोइंग टू बी 84 centimeters and half of it, so this is going to be 42 centimeters. So now you can calculate. तो यहाँ से जो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले एस इज गोइंग टू बी 42. अब 42 माइनस 30 इज गोइंग टू बी 12 इंटू 42 माइनस 28 इज गोइंग टू बी 14 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 42 माइनस 26, सो दैट इज गोइंग टू बी 16. Now
आप लोग को इस स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है एंड दिस एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. यू कैन कैलकुलेट. आप लोग सीधे यहाँ से कैलकुलेट करिए, स्क्वायर रूट निकालिए. सो दिस इज आई एम डायरेक्टली राइटिंग आउट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. यहाँ पे जो हमारे पास एरिया आ चुका है दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अब जानते हैं हम लोग कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम का एरिया है दैट इज बेस इनटू हाइट. सो 336 is equals to 28 into height. So you can calculate the height and that is going to be 336 divided by 28. आप लोग जब कैंसिल करेंगे so this is going to be 12 centimeter. इन ऑल द प्रॉब्लम्स मैंने जो मेथड्स हैं वो आपको क्लियर करने की कोशिश की है. आई एम नॉट ट्राइंग टू सॉल्व इट, आई एम नॉट टीचिंग यू एनी कैलकुलेशंस. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन दैट इज़ गुड एंड फाइन. तो इस तरह से हमारे पास दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 4. You should pause the video and note it down. Then we are going to move to the problem number 5. जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है वहाँ पे हमको एक रोम्बस गिवन है. इस रोम्बस में बेसिकली हमारे पास 18 cows हैं. This is a green field given in the problem. This rhombus is having the side of 30 meters and the longest diagonal is of 48 meters. तो अभी हमको देखना है कि हाउ मच एरिया ईच काउ इज गोइंग टू गेट फॉर ग्रेजिंग. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस. और उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 18 काउज, देन वी आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर काउ जो कि वो ग्रेज करेगी. So again we have to apply the Heron's formula. तो Heron's formula के लिए again using Heron's formula, area is equals to twice of area of triangle. देखिए यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो ट्रायंगल है. दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल. बट वी नो दैट कि जो हमारे पास रोम्बस होता है, दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर्स. जो हमारे पास रोम्बस होता है उसमें हमारे पास ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो ये 30 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर, दिस साइड इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर. और अगेन मेरे पास डायगोनल गिवन है. So if we are going to take up the area of first triangle and the second triangle, जो हमारा area of first triangle होगा that is going to be equals to the area of the second triangle. तो we need to add up the area of the triangle first to the area of triangle second, then we are going to get the complete area. तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है. I am going to multiply it by 2 और जो area of triangle मैं निकालूंगा then I am going to get the area of rhombus. तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए अगेन मुझे S चाहिए और उसके बाद मैं Heron's फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकता हूँ. यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अभी हम फिर प्रॉब्लम नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइड जो है दैट इज 30 मीटर एंड 48 मीटर. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ S. हाफ ऑफ
the sum of the sides, yes, half of the perimeter, so that is going to be 54 मीटर. अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकाल लिया है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गोइंग टू बी 54 और उसके बाद क्या होगा 54 माइनस 30 दैट इज गोइंग टू बी 24. 54 माइनस 30 दैट इज अगेन गोइंग टू बी 24 और 54 माइनस 48 दैट इज गोइंग टू बी 6. तो यहाँ से हम जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई हैव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बट दिस इज नॉट द एरिया ऑफ द रोम्बस. जो हमको एरिया ऑफ द रोम्बस जो फाइंड करना है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो एरिया ऑफ रोम्बस is going to be twice of 432, so that is going to be 864 मीटर स्क्वायर. तो अभी हमारे पास जो एरिया है ऑफ द रोम्बस वो आ चुका है. तो जो हमारे पास प्रॉब्लम था वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया विच कैन बी ग्रेज्ड बाय ईच काउ. तो अगेन टू कैलकुलेट द एरिया grazed by each cow is equals to 864 divided by 18. और जब आप इसको कैंसिल करेंगे सो इट इज गोइंग टू गिव मी द एरिया ऑफ 48 मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से वी हैव सॉल्व्ड 5 problems of the exercise 12.2. तो अभी I am going to conclude this class with these problems. In the next class we are going to solve the rest of the problems, that is problem number 6, 7, 8 and 9. तो इस तरह से हम लोग जो हमारे पास लेफ्ट आउट प्रॉब्लम्स हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व इट in the next class. So we are going to meet up in the next class. Till then stay healthy and keep learning. और अगर आपको कोई query है you can post it in the comment box. Thank you class.